یہ بات ہے قرآن کی۔ پہلے قریش کا معاملہ آپس میں نپٹنے دو، کیونکہ اللہ مکہ والوں پر کسی جھوٹے کو غالب نہیں کرتا۔ اگر محمد جیت گئے تو وہ سچے ہیں۔ یہ بات ہے سورۃ النصر کی۔ جب اللہ کی مدد آئی، مکہ کی وہ کالی اور ویران راتیں جب زمان ظلم کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ بات ہے جب 10,000 کا لشکر نبوت کی سربراہی میں آیا، اور پھر وہ رات آئی جب مکہ کے پہاڑوں پر 10,000 چراغ جل اٹھے۔ اس وقت مکہ کی ان خاموش وادیوں میں صرف ایک ہستی تھی جو اپنے رب کے سامنے ساجدہ ریز ہوتی۔ سال گزارتے گئے، تکلیفیں بڑھتے گئی، پھر ہجرات کا حکم آیا۔ آپ نے مدینے کے اندر ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی۔ یہ بات ہے جب دشمنی کی تلوار ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور نبی پاک توت کے غلاموں نے مکہ کو فتح کر لیا۔ بدر کے میدان ساجے، احد کے زخم کھائے گئے۔ ہم کب تک ہاتھ پر ہاتھ دھارے بیٹھیں گے؟ ادھر محمد کا لشکر بڑھتا جا رہا ہے اور ادھر ہم خاموش ہیں۔ کیا قریش کی تلواریں زنگ کھا گئی ہیں؟ صرف ہم نہیں صفوان، مجھے حیرانی تو باقی عرب قبیلوں پر ہے۔ وہ خاموش کیوں ہیں؟ کیا وہ ہمارے حلیف نہیں؟ کیا انہیں ہمرے اور محمد کے درمیان یہ خاموشی نظر نہیں آتی؟ بات تلور کی نہیں ہے صفوان، اور نہیں وہ بھول گئے ہیں۔ بات ہوا کے رخ کی ہے۔ میں نے عرب کے قبیلوں کو دیکھا ہے، وہ تماشائی بن چکے ہیں۔ تماشائی؟ کیسا تماشا؟ کیا وہ ہماری طاقت کو بھول گئے ہیں؟ نہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں۔ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس اونٹ کی کروٹ کس طرف بیٹھتی ہے۔ ان کا کہنا ہے پہلے قریش کا معاملہ آپس میں نپٹنے دو۔ مطلب صاف ہے، وہ کہتے ہیں اگر محمد ہم پر یعنی اپنی ہی قوم قریش پر غالب آ گئے تو وہ سچے ہیں۔ ہاں صفوان، کیونکہ عرب کا ہر بچہ جانتا ہے اللہ حرمہ والوں پر کسی جھوٹے کو کبھی غالب نہیں کرتا۔ تو کیا ہم ہار مان لیں؟ انہیں مکہ میں داخل ہونے دیں؟ اگر وہ تلوار سے آئے تو ہم لڑیں گے، لیکن اگر وہ کوئی اور قوت لے کر آئے، لبنین تلوار نہیں، نصیب بولے گا۔ ابو سفیان کا اندازہ صحیح تھا۔ مدینہ سے تلواریں نہیں بلکہ دلوں کو فتح کرنے والا ایک ایسا لشکر نکل چکا تھا جس کے آگے قریش کا ہر ہتھیار بے اثر ہونے والا تھا۔ اور پھر وہ رات آئی جب مکہ کے پہاڑوں پر 10,000 چراغ جل اٹھے۔ یا خدا، یہ کس کا لشکر ہے؟ جیسے پورا عرب امڑ آیا ہو۔ اے ابو سفیان، یہ رسول اللہ کا لشکر ہے۔ اب قریش کے پاس امن مانگنے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ یہ سیلاب ہے یا لشکر؟ اتنے ہزاروں لوگ مگر کوئی نعرہ نہیں، کوئی للکار نہیں۔ یہ تلواریں کیوں نہیں چلا رہے؟ یہ تو ایسے چالے آ رہے ہیں جیسے اپنے گھر واپس آ رہے ہوں۔ غور سے دیکھو، ان کی سالار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا ہے، اتنا جھکا ہوا کہ داڑھی مبارک اونٹنی کے کجاوے یعنی سیڈل کو چھو رہی ہے۔ دنیا کے بادشاہ جب شہار فاتح کرتے ہیں تو گردان اکر کر سینہ تان کر داخل ہوتے ہیں، مگر یہ تو کیا
क्या ये खून नहीं बहाएंगे? क्या हमारे किए का बदला नहीं लेंगे? नहीं लगता। मैंने सुना था कि फतह वो होती है जहां दरवाजे बगैर तोड़े खुल जाएं और दिल बगैर चीरे जीत लिए जाएं। आज मक्का की जमीन पर वही हो रहा है। आखिर ज़मान में ऐसा क्यों होता है? क्या ये सितारे जमीन पर उतर आए हैं? या खुदा, ये सितारा है, ये किस लश्कर है? आज मक्का की गलियां खून से भर जाएंगी। 10,000 तलवारें, 10,000। हमने इनके साथ क्या कुछ नहीं किया, मगर शौर कहां है, चीखें कहां हैं? अगर ये बदला लेने आए हैं तो तलवारें मयान से बाहर क्यों नहीं हैं? ये तूफान से पहले की खामोशी है मेरे दोस्त। अभी बिलाल पुकारेगा और सर धड़ से अलग होंगे। नहीं, जरा गौर से देखो, इनका सालार बैठा है। वो अपने ऊंट पर बैठा है, लेकिन सीना तान कर नहीं, बल्कि सर इतना झुका हुआ है कि लगता है ऊंट की गर्दन से लग जाएगा। सर झुका हुआ? फतह के बाद कौन सर झुकाता है? ये कैसी चाल है? सुनो, वो कुछ कह रहे हैं, पर कोई पकड़ नहीं। जाओ, तुम सब आजाद हो। आजाद? बिना बदला लिए, बिना गुलामी के? ऐसा कैसे हो सकता है? शायद यही वजह है कि आज मक्का उनके डर से नहीं, उनके किरदार से कांप रहा है। चलो देखते हैं कि ये रहमत आखिर है क्या। देखो, कल तक जो लोग हमसे डरते थे, आज वो फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। दुनिया ने सोचा था कि आज मक्का की गलियों में खून की नदियां बहेंगी, बदला लिया जाएगा, लेकिन तारीख हैरान थी, क्योंकि आज तलवार नहीं, किरदार बोलने वाला था। आज हमारी लाशें बिछा दी जाएंगी। नबी और रहमत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत शफ़क़त भरी आवाज़ में कुरैश के लोगों से फरमाया, ऐ कुरैश के लोगों, आज तुम मुझसे किस बात की उम्मीद रखते हो? मैंने तुम्हारे साथ क्या करना है? आप करीम भाई हैं और करीम भाई के बेटे हैं। हम आपसे सिर्फ भलाई की उम्मीद रखते हैं। नबी रहमत सरवर कौनीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ी ने इंतहाई पूर जलाल मगर शफ़क़त भरी आवाज़ में कुरैश के लोगों से फरमाया, तो आज मैं तुमसे वही कहता हूँ जो यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था, जाओ तुम सब आज़ाद हो। मक्का फ़तह होने को था, लेकिन दिलों का फ़तह होना अभी बाकी था। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु अबू सुफ़ियान को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचे। ऐ अबू सुफियान, क्या अब भी वो वक्त नहीं आया कि तुम जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं? मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, आप कितने करीम हैं। अगर अल्लाह के सिवा कोई और खुदा होता तो आज हमारे काम आता। मैं मान गया कि खुदा एक है। और क्या वो वक्त नहीं आया कि तुम जान लो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? ऐ अबू सुफियान, इससे पहले कि गर्दनें मान दी जाएं, गवाह बन जाओ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सरदार ने सर झुका दिया तो कौम ने भी दिलों के दरवाजे खोल दिए। जो कल तक दुश्मन थे, आज भाई बन रहे थे। हमने उन्हें सताया, वतन से निकाला, और बदले में हमें क्या मिला? मुआफ़ी, आज़ादी। मैंने आज तक इस खेमे यानी इस्लाम से ज़्यादा नफ़रत किसी चीज़ से नहीं की थी, लेकिन आज इससे ज़्यादा महबूब मेरे लिए कुछ नहीं। लोग टूटे हुए दिलों के साथ आए और जुड़े हुए दिलों के साथ वापस गए। ये तलवार की नहीं, अखलाक की जीत थी। रदीतु बिल्लाहि रब्बा, यानी हम राज़ी हैं अल्लाह के रब होने पर। ये वो लम्हा था जिसने तलवार की धार को हमेशा के लिए काट दिया। जो गर्दनें ताकत से नहीं झुकी थीं, वो उस मोहब्बत के सामने झुक गईं। इसी को फतह मबी कहते हैं। अल्लाह ने अपने नबी और सहाबा किराम को तोहफे में सूरत नसर दी।
यानी फतह की खुशखबरी। जब अल्लाह की मदद आ पहुंची और फतह हासिल हो गई, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमने देख लिया कि लोग फौज दर फौज अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं, तो अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करो और उससे मगफिरत मांगो, बेशक वो बड़ा मुआफ करने वाला है। नसर कहते हैं तलवार उठाने के बाद कामयाबी, और फातह बगैर तलवार उठाए दिल जीत लेना। मक्का फातह हो गया, लोग फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल होने लगे, तब कुरान की ये सूरह नाजिल हुई। हज़रत उमर बज़ाक सहाबा से पूछते हुए, ए रसूलल्लाह के सहाबा, अल्लाह के इस फरमान, ए अल्लाह के रसूल के सहाबा, अल्लाह के इस फरमान के बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, ये अल्लाह की तरफ से इनाम की खुशखबरी है। अये इब्ने अब्बास, क्या तुम्हारी भी यही राय है? नहीं अमीरुल मोमिनीन, मेरी राय मुख्तालिफ है। बताओ, तुम क्या समझते हो? यह दरअसल रसूल अल्लाह की वाफत की खबर है। अल्लाह कह रहा है, अय नबी, जब फातह आ गई, मिशन पूरा हो गया, तो अब आपका अपने राब से मिलने का वक्त करीब है। खुदा की कसम, मैं भी वही जानता हूं जो तुमने कहा। इस मौके पर जहां हर तरफ खुशी थी, लोगों ने देखा कि यार गार हजरत अबू बकर सदीक एक कोने में बैठे रो रहे हैं। कुछ सहाबा ने हैरत से सरगोशी की कि ये तो खुशी का वक्त है, अबू बकर खान क्यों रो रहे हैं? तब सूरज जब अरूज पर पहुंच जाता है तो उसके बाद सिर्फ गुरूब होता है। हमारे महबूब का काम मुकम्मल हो गया, अब वो हमें छोड़कर जाने वाले हैं।